Hello students, today we study a poem for students of class 10th from the First Light book. This poem is your first poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है एंड जितनी भी वो पोएम लिखते हैं वो डिपिक्ट्स करती है रियलिटी ऑफ लाइफ से, क्योंकि वो रियलिस्टिक पोएट है। तो लाइफ में चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें हों या सफरिंग हो, हैप्पीनेस हो, जॉयस हो, सोरोस हो, इन सारी चीज़ों को वो एज इट इज अपनी पोएम में रखते हैं। सो नाउ इट्स कम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। द पोएम इज द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The poem Dust of Snow, written by Robert Frost, is a simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. The poet throws light upon the unimaginable healing power of nature and teeny things. From a bad mood to ill health, there is nothing that can't be cured by nature. The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. The snow instantly makes him happier. His day gets a lot better. Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. The fact that hemlock tree is a poisonous combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poems as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. The poet through these objects has tried to highlight that sometimes creature linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. Being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone, anywhere, at any time. So Robert Frost put into words always a larger significance, a little things touches a larger things. So पोएम शुरू करने से पहले इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। जो ओवरऑल थीम है डस्ट ऑफ स्नो की, वो हमें ये बताती है कि नेचर के पास ना हमारे लिए बहुत सारी हीलिंग पावर है। मतलब हमारे पास कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, वो हील हो सकती है नेचर के द्वारा। नेचर जितना भी हमारी नेगेटिव इमोशंस होती हैं ना, वो उनसे डील करने के लिए है और वो डील कर भी लेती है। बस आपको अपने आप को नेचर से जोड़ने की जरूरत है। कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं और सोचते हैं कि जब इनका कोई काम ही नहीं है तो ये क्यों है, इसका क्या काम है, ये तो बहुत बुरी है। ऐसे हम कई बार क्वेश्चंस करते हैं किसी चीज़ को देखकर। तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ें आपके लिए बुरी हो सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरों के लिए यूजफुल हो सकती हैं। ओके, गॉट इट? तो समझ आया आपको इसकी थीम का मतलब? तो ये एक शॉर्ट क्या है, पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव जो थॉट्स होती हैं, जो हम किसी के लिए अपने माइंड में बैठा लेते हैं, कई बार वो चीज़ें हमारे लिए ब्रिंगर चेंज ला सकती है, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं और हमें क्या दे सकती हैं, बहुत ज़्यादा
खुशी दे सकती है। Got it? So we start the poem. First stanza is here. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. As he passes by a crow happens to throw some snow dust on him. Whether it falls on his head or shoulder is unknown, as there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action, whether the crow was landing, shivering, or with cold, readjusting itself on the branch, or taking off. It happened to send some particles of snow upon the author. Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, or signifiers of sadness and gloom, just like a poet's mood was in the opening scene. So बच्चों, पोएम का जो सीन है ना, वहां पर हमको ये 4 लाइन से पता लग रहा है कि जो पोएट है वो काफी बैड मूड में है। बैड मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो वॉक कर रहा है। कहां पर वॉक कर रहा है? एक हेमलॉक ट्री के पास से। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, और वो क्या है कि वो एक पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक ट्री के पास से वॉक कर रहा है कौन? पोएट। और जैसे ही वह उस ट्री के नीचे से वॉक करते हुए जाता है, तो वहां पर बैठा है एक क्रो ट्री के ऊपर। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कुछ डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो पोएट के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अब क्लियरली नहीं है कि पोएट के सर के ऊपर गिरती हैं या उसके शोल्डर पर, बट डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जरूर जाती है। इसमें एक डाउट ये भी है कि क्रो एक्टिविटी किस लिए की हुई, ये भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया। रीडर्स के लिए या हम लोगों के लिए एक डाउट ये भी है। गॉट इट? एनीवेज, जो क्रो है वहां पर बैठा था, मे भी हो सकता है कि वो ठंड से ठिठुर रहा हो और उसने वो एक्टिविटी की और उसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर गई। यहाँ पर आपको नोटिस करना चाहिए था कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं पर नेगेटिव चीजों से, मतलब नेगेटिव साइन शो करती है। ऐसा लगता है कि मतलब जहां पर क्रो की बात आती है वहां पर क्रो कहीं ना कहीं पर फियरनेस को शो करता है, कहीं ना कहीं मतलब बुरा शो करता है। जैसा कहते हैं ना पुराने लोग कि छत पर क्रो आकर काव काव करता है, तो बोलते हैं कि अब कोई बुरा संदेश आने वाला है, मीन्स कुछ बुरा मैसेज मिलने वाला है। और अगर हम हेमलॉक ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या है? पॉइजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पोएट ने 2 नेगेटिव चीज़ों को लेकर हमें ये समझाने की कोशिश की है कि नेचर में जो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती हैं। आप उन नेगेटिव चीज़ों को हमेशा नेगेटिव मानकर अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, वो भी आपके लिए कोई खुशी का संदेश ला सकती है। So now comes second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So for
Reason unknown. The author was having a terrible day, but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. Generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. अब इस स्टेंजा में भी कोई रीजन नहीं बताया गया, ना ही ये क्लियर किया गया कि पोएट का ना बहुत बुरा वाला दिन, कहते हैं ना कि अरे यार आज का दिन तो बड़ा टेरिबल वाला दिन था, मतलब क्या बोला जाए, एक दिन खराब वाला दिन की बात करते हैं। तो मतलब जो पोएट है उसका अभी तक का जो दिन था, जब तक वो हेमलॉक ट्री के नीचे से नहीं गुजरा, वो बहुत ही बेकार या बहुत ही खराब वाला दिन गुजरा। लेकिन जब वो वॉक कर रहा था तो उसके ऊपर स्नो ऑफ डस्ट या डस्ट ऑफ स्नो गिर गया। अचानक से पोएट का जो मूड है वो एकदम मतलब रिफ्रेशिंग वे में जाने लगा, और कहीं ना कहीं वो उसने जो भी अपना पूरा का पूरा दिन बैड मूड में स्पेंड किया है, लेकिन पोएट अब खुद कह रहा है कि उसका मूड चेंज हुआ, और वहां से उसको जो बचा हुआ दिन का पार्ट था जो खराब जा सकता था, बट कहीं ना कहीं उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जमे बर्फ ने के जो थोड़े से कण थे, उस बर्फ ने उस क्रो ने, जो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, उसके उस खराब दिन को अच्छे टाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री और क्रो भले ही नेगेटिव रेफरेंसेस हमें शो करते हैं, लेकिन पोएट ने उन्हें ब्यूटीफुल यूज किया है। समझ आ गया ना? जैसे हम कहते भी हैं कि किया है कि जो काफी अपशुगन माने जाने वाली चीजें हैं वो भी हमारे लिए जॉय और हैप्पीनेस ला सकती हैं। हमें इन चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ओके, समझ गए ना? टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि जो एजेटिक चीजें होती हैं, जैसे क्रो है या हेमलॉक ट्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पहले से नेगेटिव मान लेते हैं। तो हमें ये ग्रांटेड नहीं करना चाहिए कि भाई ये नेगेटिव ही है। समझ आ गया ना? ये हमारे लिए क्या लग सकते हैं, कई बार हैप्पीनेस भी ला सकती है। जैसे इन चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये भी नेचर का पार्ट है। समझ में आ गया ना? जैसे हम एक नेचर का पार्ट है, ऐसे ये भी एक नेचर का पार्ट है, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नेचर में हम भी हैं और ये भी आते हैं। ओके, सो नेचर में हर एक चीज को एक्सटेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उनको भी मानना चाहिए और अपने आप को मानना चाहिए। समझ आ गया? तो इन दिस पोयम, जो हमारी ये पोयम है, इस पोयम में कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम पढ़ रहे हैं इस पोयम को, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो जो यहाँ पर राइमिंग वर्ड चल रही है वो ए बी या ABCD चल रही है। जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो एक राइमिंग वर्ड हो गया ABBC। समझ आ गया ना? AB और AB। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं इसी में, तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, यहाँ पर लिटरेशन का पार्ट है। मतलब लिटरेशन क्या होता है, जो सेम लेटर का बार बार आना होता है। जैसे हैज और हार्ट है इसमें सेकंड वाले स्टेंजा में, तो एच का क्या है, यहाँ पर जो वर्ड है 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लिटरेशन होगा। तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी होगा इसमें। ओके, सो मुझे आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझ आ गई हुई पोयम भी और फिगर ऑफ स्पीच भी। ओके बच्चों, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी होगी, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो यू कैन आस्क मी माय पर्सनल। ओके बच्चों, बाय।